Hello students, today we are going to start the topic matrices with the introduction. So what are matrices? A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. किसी भी आप अगर numbers को rectangular array में arrange कर देते हैं then it is known as your matrix. The numbers or functions are called the elements or the entries of the matrix. और ये numbers को क्या बोलते हैं हम? Elements or entries of the matrix. We denote matrices by capital letters and we denote the matrices by capital letters. These are the examples for matrices. Then come to order of a matrix. For a matrix A, ये आपकी notation है matrix की. Order of A is m cross n, where m is nothing but number of rows and n is number of columns. And the entries I and j belong to the rows. I belong to the rows, number of rows, and j is number of columns, where ij belongs to n natural numbers. Then types of matrices. First is column matrix. If we arrange the numbers in the form of column, then it is known as column matrix. Second one is row matrix. If we arrange the numbers in form of row, then it is known as row matrix. Then come to third one. Next is square matrix, a matrix in which number of rows equals to number of columns. In this matrix there are 3 rows and 3 columns. So this is a square matrix of order 3. Clear? Then fourth one is diagonal matrix, whose non-diagonal elements are 0. Diagonal matrix क्या होती है? जिसके diagonal में elements होते हैं, remaining elements are 0. That is known as your diagonal matrix. For example, A equals to this. यहाँ आप देख रहे होंगे इसके डायगोनल में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड अदर देन दैट ऑल एंट्रीज आर 0. सो इट इज द एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. देन फिफ्थ वन स्केलर मैट्रिक्स, हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आपके सारे इक्वल होंगे, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज योर स्केलर मैट्रिक्स. क्लियर? देन नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर 1. अगर डायगोनल में एलिमेंट्स एंट्रीज 1 होगी देन इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स, हुज ऑल एंट्रीज आर 0. ये तो आपका नेम से ही क्लियर है. हुज ऑल एंट्रीज आर 0, दैट इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. Equality of matrices. Two matrices A and B are said to be equal if they are of same order. First one, and second, each element of A is equal to the corresponding element of B. For example, ये आपका A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है. Each entry इक्वल होनी चाहिए corresponding entry. Means 2, यहाँ पर भी 2 आएगा, 3 3 0 0 1 1 and they are of same order. Then they are called equal matrices. इसका मीनिंग क्या है? That is Aij equals to Bij for every I and j. आपकी पूरी एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए, देन वी कॉल देम एज इक्वल मैट्रिसेस. अब सेकंड एग्जांपल से देखेंगे, यहाँ आपकी एंट्रीज तो सेम ही है बट वी डू नॉट प्लेस इट एज फॉर एवरी आई एंड जे इक्वल. ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपकी इक्वल नहीं है इन मैट्रिसेस में, सो दे आर नॉट इक्वल. ये आपके नॉट इक्वल हो जाएंगे. आपका ईच एंट्री इक्वल होना चाहिए टू द कोरस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. देन वी कॉल ओनली इक्वल मैट्रिसेस, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल. नाउ कम टू द एक्सरसाइज ऑफ मैट्रिसेस. इस पर बेस्ड ऑफ एक्सरसाइज करेंगे. स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 3.1. क्वेश्चन नंबर 1, इन द मैट्रिक्स ए. ये आपका मैट्रिक्स ए गिवन है. राइट ऑर्डर ऑफ ए. सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए हियर? For order we only observe the number of rows and number of columns. Or order, as you know, order of A is m cross n, where m are number of rows and n are number of columns. So here 1 2 3 rows and 1 2 3 4 rows. So order is 12 for this given matrix. And number of elements बोल दे आपको या फिर order of A बोल दे, that is same, क्योंकि आपने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम से ही ऑर्डर निकाला है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आपका 12 हो जाएगा. एज ऑर्डर इज 4, एज ऑर्डर इज 12. सॉरी. ठीक है. थर्ड पार्ट में राइट द एलिमेंट्स. आपसे एलिमेंट्स पूछ रहा है. A13, A21, A33, A24 and A23.
ये कुछ नहीं है, आपको एंट्रीज पे जाना है, I फॉर रो एंड J फॉर कॉलम। सो A13 रो इज 1 एंड कॉलम इज 3, ये आपका A13 होगा, A11, A22, A13 दैट इज 19। अब A33 मीन्स थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ये आपका थर्ड रो और थर्ड कॉलम, -5। A21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम मीन्स 35। A24 का भी ये आपका रो है एंड ये आपका कॉलम है, मीन्स सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम 12। एंट्रीज नोट डाउन करनी है आपने। A23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम मीन्स 5/12। सो दीज आर द एंट्रीज फॉर these respective question. Now come to second question. If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? अब जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था फ्रॉम द ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां हमें गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो वी कैन राइट इट द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। सो वी कैन राइट इट एज सिंपली, इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। ठीक है, 24 को फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 24, द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बनेंगे आपके, इट विल बी 1 24 और 24 1, और वी कैन राइट इट एज 2 12 12 2, देन नेक्स्ट 6 4 और 4 6 और 3 8 एंड 8 3। ठीक है, तो आपको पेयर अप कर लेने हैं इन टर्म्स ऑफ 24 आना चाहिए इनका प्रोडक्ट फॉर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, तो यही बनेंगे आपके। ठीक है, सो द पॉसिबल ऑर्डर फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 आर दीज। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर इस मैट्रिक्स पे 13 एलिमेंट्स हो देन पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, 13 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सो 1 एंड 13 13 1 दो ही यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, राइट डाउन करते हैं इसको। So for number of elements 13, possible orders it will have 1 13 and 13 1। Clear? इसके other than that तो कोई possible order नहीं बनेगा for this matrix। So this is the answer for question number 2। Third question ऐसे ही है आपका, same similar है, you can try it yourself। Then come to question number 4। Construct a 2 cross 2 matrix A whose elements are given by this। ये entries आपकी IJ के फॉर्म में given है, हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। मीन्स फर्स्ट वी राइट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एज A इक्वल्स टू A11, एंट्रीज के फॉर्म में राइट डाउन कर लेते हैं पहले अपना 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, देन वी कैन फाइंड आउट द रेस्पेक्टिव एंट्रीज फ्रॉम द गिवन कंडीशन। फर्स्ट के लिए है Aij इक्वल्स टू I प्लस J होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, बस सिंपली आपने A11 पुट कर देना है। सो वी कैन फाइंड आउट A11 फ्रॉम दिस गिवन कंडीशन, मीन्स 1 प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 2, इट मीन्स 2 स्क्वायर 4/2, ये आ गया आपका 2। देन A12 भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, मीन्स 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर ओवर 2, और ये आ गया आपका 9/2। देन इन द सेम वे A21 2 प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 2, मीन्स ये भी आपका 9/2 आएगा। क्लियर? The next one A22 के लिए व्यू क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ऊपर नोट डाउन करते हैं इसको। नेक्स्ट एंट्री A22 के लिए 2 प्लस 2 होल स्क्वायर बाय 2, इट मीन्स 2 प्लस 2 4 स्क्वायर 16/2 8। सो द मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 यहाँ पर क्या आ गया, A11 के प्लेस पे रखिए 2, A22 के A12 के प्लेस पे रखेंगे हम 9/2, then A21 is 9/2 and A22 is 8। This is the respective matrix for the given condition। Then in the same way we can find out the second part। अब यहाँ पर A11 हो जाएगा आपका 1/1 means 1, A21 is 2/1 means 2, and A12 1/2, A22 2/2 means 1। So the respective matrix for the given condition is A11 के place पे 1, A12 half, A21 2 and A22 1। So this is the answer for this question। Now come to fifth question।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 3x4 की मैट्रिक्स। सो 3x4 मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी? नंबर ऑफ रोज आर 3 एंड कॉलम्स आर 4, मीन्स A11, A12, A13, A14, A21, A31, ठीक है, A22, A23, A24, A32, A33, A34, ये आपकी रेस्पेक्टिव मैट्रिक्स बनेगी 3x4 की। नाउ फ्रॉम द गिवन कंडीशन वी कैन फाइंड आउट ईच एंट्री फॉर दिस मैट्रिक्स। फर्स्ट कंडीशन में आपका गिवन है Aij इक्वल्स टू हाफ mod of minus 3i plus j. So for this condition we find all entries. A11 फाइंड आउट करते हैं, हाफ। इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना, i के प्लेस पे 1 रख देना है और j के प्लेस पे 1 रख देना है। देन यू कैन फाइंड योर रेस्पेक्टिव एंट्री। मीन्स A-2 बना, मोड है, सो आउटसाइड में 2 आएगा। A11 इज 1। ऐसे सेकेंड A12 हाफ -3 प्लस 2, इट मीन्स A-1 और मोड के बाद ये 1 हो जाएगा, सो हाफ। क्लियर? इन द सेम वे A13 हाफ, एंट्रीज के प्लेस पे रख दीजिए, i के प्लेस पे रखेंगे 1 एंड j के प्लेस पे 3, सो दिस एंट्री बिकम्स 0। देन नेक्स्ट A14 के लिए भी आप ऐसे ही रखेंगे, -3, i के प्लेस पे 1 एंड j के प्लेस पे 4, सो 1/2। क्लियर? In the same way we can find out A21, means I के प्लेस पे अब 2 आ जाएगा एंड J के प्लेस पे 1, ठीक है। सो ये -6 प्लस 1 मीन्स -5 एंड मोड लगाने पर ये 5/2। देन A22 हाफ ऑफ -3 इंटू 2 और J के प्लेस पे भी हम 2 रखेंगे, मीन्स -6 प्लस 2 4/2 और 2 सिंपली। क्लियर? अब बाकी के एंट्रीज नोट डाउन करते हैं। A23 आएगा हाफ, ठीक है, -3 इंटू 2 प्लस j के प्लेस पर 3 रख देंगे, इट मीन्स -6 प्लस 3/2। ये आपका आ जाएगा -3 इंटू 2 प्लस 4 मीन्स -6 प्लस 4 2/2, इट मीन्स 1। और ये -3 इंटू 3 प्लस 1 -9 plus 1 means 8/2, it means 4, ठीक है। In the same way we can find out A32, A33 and A34 and then write down the respective 3x4 matrix with the help of these entries. A32 it means half और ये -3 जा 9 plus 2, it means 7/2। ये आएगा आपका हाफ, -9 plus 3 6/2, इट मीन्स 3। और ये बनेगा आपका हाफ, -9 प्लस 4 मीन्स 5/2। दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज फॉर द मैट्रिक्स। नाउ वी कैन राइट डाउन द मैट्रिक्स फॉर दीज एंट्रीज। आप इनको प्लेस कर देना वैल्यूज को, दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इन द सेम वे हम सेकंड का भी आंसर निकाल लेंगे, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और इन एंट्रीज को मैट्रिक्स के फॉर्म में प्लेस कर लेना, दैट इज योर फाइनल आंसर। देन कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आपकी मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन है, इट मींस इक्वल साइन है, 2 मैट्रिसेस गिवन है, दैट इज सिंपली मींस दीज आर 2 इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमें कंडीशन पता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B। सो यूज करेंगे बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स फॉर सॉल्विंग दिस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज है यहाँ पे, ठीक है, फॉर सॉल्विंग दिस। बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी सिंपली राइट 4 इक्वल्स टू y, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, ठीक है, एंड 3 इक्वल्स टू z। क्लियर? x इक्वल्स टू 1 एंड 5 इक्वल्स टू 5, ये तो गिवन है। सो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू 3। दैट इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। In the same way we can solve out our second and third part. So for second part, same, by using equality of matrices we obtained here x plus y equals to 6
ये 2 इक्वल्स टू 2, इसका तो कोई मीनिंग नहीं बनता. 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 8. क्लियर. अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. सो यहाँ से सिंपली जेड आपका क्या आ रहा है 0. ठीक है. अब जेड 0 आ गया हमारे पास. जेड की वैल्यू तो फाइंड आउट हमने कर ली. यहाँ से एक्स क्या आएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन 6 माइनस वाई. सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको एक्स वाई इक्वल्स टू 8 में. दैट इज 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 8 और सिंपली 6y माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 8 और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगी. मीन्स वाई स्क्वेयर माइनस 6y माइनस 8. वाई स्क्वेयर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे ना तो प्लस 8 लेंगे. क्लियर. वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0. अब इसको सोल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन फॉर y. सो यहाँ पर फैक्टर्स हम बनाएंगे y के. तो ये बनेंगे वाई स्क्वेयर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो y की 2 वैल्यूज आएंगी यहाँ पे और इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट 2 वैल्यूज फॉर x. अब इसको बाय फैक्टराइजेशन जब हम सोल्व करेंगे सो y की वैल्यू 2 एंड 4 आ गई. इट मीन्स फॉर y इक्वल्स टू 2 आपका x क्या हो जाएगा. x will be 6 minus y and 6 minus 2 equals to 4 and for y equals to 4 x becomes 4 minus 2 means 2. These are the values for x, y and z for this question. In the same way we can solve out this third part by using equality of matrices. So इसको आप खुद से सोल्व कीजिएगा. Then come to 7th question. 7th question देखिए. Find the value of a, b, c and d from the equation. यहाँ पर x, y, z पूछा था. यहाँ पर a, b, c पूछ लिया है. वही सेम फंडा है. By using equality of matrices we solve it for a, b, c and d. So solve करते हैं. By using equality of matrices corresponding entries क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी. आप लिख भी सकते हो. दैट इज ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे. क्लियर. ये यूज कर रहे हैं हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का. सो फ्रॉम दिस a माइनस बी आपका किसके इक्वल आ गया -1 के. 2a प्लस सी 5 के एंड 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0. 3c प्लस d इक्वल्स टू 13. इन चारों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे. देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c. अब ये दोनों इक्वेशंस देखिए. मैं यहाँ से डायरेक्ट सोल्व कर रही हूँ. इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 में से 2. सो नेगेटिव साइन चेंज कर लेते हैं. b से b कैंसिल आउट और यहाँ पर तो साइन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा राइट हैंड साइड में क्योंकि यहाँ 0 है. सो ये आ गया आपका -a इक्वल्स टू -1 और a इक्वल्स टू 1. ठीक है. a की वैल्यू 1 आ गई. इट मीन्स सिंपली b क्या आ गया आपका. b इज 2. ठीक है. इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट a and b. now for the value of c and d. c and d के लिए सिंपली यहाँ पर 2a प्लस c में a की वैल्यू रख देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी. मीन्स 2 प्लस c इक्वल्स टू 5 और c इक्वल्स टू 3 सिंपली. ठीक है. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन 4th इक्वेशन. तो ये आपका बनेगा 2a प्लस c ये था 3c प्लस d इक्वल्स टू 13. दैट इज c की वैल्यू रखेंगे तो 3 3 जा 9 और तो प्लस d इक्वल्स टू 13. सो d की वैल्यू हमने फाइंड आउट की यहाँ से 4. चारों की वैल्यू आ गई. a इज 1, b इज 2, c इज 3, d इज 4. बस आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लगाना है. देन यू कैन इजीली सोल्व आउट योर प्रॉब्लम. सो आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस किया, डेफिनेशन की उस मैट्रिसेस की, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किया, देन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड देन बेस्ड upon these topics the questions of exercise 3.1. If you like my lecture, if you understand the questions, then press the like button and share my channel. Subscribe more and more for watching all the videos. Thank you so much.